میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں جا پہنچا۔ حکومت میاں نواز شریف کی بیماری پر تاوان لینا چاہتی ہے، شہباز شریف کا الزام۔ نواز شریف کی سب سے بڑی دشمن مسلم لیگ نون ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری کا بیان۔ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے لیے ضمانتی بانڈز دینے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید سے، رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے۔ And a very warm welcome to the show. میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ سیاسی افق پر چھایا ہوا ہے۔ حکومت نے گیند نون لیگ کے کورٹ میں ڈال دی تھی اور نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے 7 ارب کے ضمانتی بانڈ طلب کیے۔ مسلم لیگ نون نے اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسے انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ اس شرط کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چند گھنٹے قبل شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی گئی، جہاں اسے فوری طور پر سماعت کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا گیا، مقرر کر دی گئی سماعت اس کی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ یہ معاملہ اسلام آباد کا ہے، اس لیے اسے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سن سکتی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سماعت کل تک ملتوی کر دی جائے۔ میاں شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، کافی باتیں کی، انہوں نے کافی کھل کر بولے اور وزیر اعظم عمران خان پر کڑی تنقید کی۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ضمانتی بانڈز کی شرائط کو جو پیش کی گئی ہے گورنمنٹ سے بالکل ریجیکٹ کرے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رینسم ہے، کڈنیپ کرنے کے بعد اسے رینسم مانگا جاتا ہے، اغوا برائے تاوان اس کو وہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹس واچ ہے۔ کل جو شرطیں لگائی گئیں وہ صرف قوم کو گمراہ کرنے کی ایک اور سازش عمران خان نیازی کی۔ وہ کہتے جناب مجھے کہا گیا یہ تو جناب ہے انڈیمنٹی بانڈ ہے، سائن کر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ سب سے اوپر ہے، باقی تمام چیزیں سب آرڈینیٹ ہیں اور میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو انڈیمنٹی بانڈ کی جو شرط لگائی گئی اس کا جواز کیا ہے؟ صرف میں نے یہ شروع میں کہا کہ عمران خان نیازی اگر تھیوریٹیکلی اگر یہ پیپر سائن ہوتا ہے تو قوم کو کہ دیکھا میں یہ کہتا تھا کہ جناب میں ان سے پیسے نکلواؤں گا، یہ کاغذ یہ ہے 7 ارب روپے کا، وہ دے گئے اور میں نے کہا جاؤ چلے جاؤ ملک سے، یہ ہے اصل میں۔ میاں نواز شریف کی طبیعت سخت ناساز ہے، لیکن مسلم لیگ نون 7 ارب کے ضمانتی بانڈز دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ اس پر حکومت کو نشانہ بھی بنا رہی ہے اور ساتھ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے۔ قومی اسمبلی میں بھی آج اس حوالے سے گرما گرمی دکھائی دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے۔ لیٹس واچ خواجہ آصف۔ یہ مچلکا 7 ارب روپے کا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی مانیٹری ویلیو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے پس منظر میں یہ بڑی مہلک چیز ہے اور مجھے یقین ہے، مجھے اس کے ورکر ہونے کی حیثیت سے یقین ہے کہ وہ 100% واپس آئے گا، لیکن صرف توہین کرنے کے لیے اس کی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ضمانت ہے جی، یہ 7 ارب روپے کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جو نواز شریف نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ہم نے جانے۔ ان کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت مراد سعید نے کہا کہ مسلم لیگ نون خود میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ لیٹس واچ مراد سعید۔ صحت کے اوپر سیاست کون کر رہے ہیں؟ روزانہ ان کے ترجمان آ کے اسپیکر صاحب بیان دیتے ہیں کہ آپ نواز شریف کنوکٹڈ ہے، تو کیا یہ ہم نے کہتے کہ انتقام کی آگ، کیا ہم نے ان کو سزا دی ہے؟ اسحاق ڈار، وہ میرا تو کوئی کچھ نہیں لگتا، اسحاق ڈار ان کا فائنانس منسٹر، ایفیڈیوٹ ہے، منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، وہ مفرور ہے، ان کا وزیر خزانہ تھا، برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، واپس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے واپس نہیں آنا تھا وہ واپس نہیں آیا۔
अली इमरान किसका दामाद है? शहबाज शरीफ का। वो वहां पे बैठा हुआ है, जो नहीं आना था वो नहीं आया। सरीका फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये क्या इतनी सेहत खराब आप बता रहे हैं कि है नवाज शरीफ साहब की, तो इस वक्त सियासत करने का कौन सा मौका है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बातें हमने अपने सियासत कर रहे हैं, अगर सियासी मकसद के लिए भी कर रहे हैं पीटीआई, आपका तो एक सीरियस मसला है, आपके लिए सेहत ऊपर है या सियासत पहले है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया है, बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात सुन भी लें। ये सबसे पहले वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा आज से 10 दिन पहले कि नवाज शरीफ का नाम तो ECL पे नहीं है, और जब अखबार नवीस ने दोबारा सवाल किया कि आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं, मैंने तो चेक कर लिया है सेक्रेटरी दाखिला समेत सारे अफसरों से, नवाज शरीफ का नाम ECL में है नहीं, जाएं इलाज के लिए। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। दूसरी बात, इमरान खान ने आज से पहले क्या तासुर दिया, इसके साथ साथ आप इनके लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट शिबली फराज साहब का बयान देख लें। वो आज से 3 दिन पहले कह रहे थे कल चले जाएंगे वो। इसके साथ गवर्नर पंजाब का बयान देख लें, इसके साथ उनके और बहुत से वज़रा का बयान देख लें। फिर इमरान खान ने खुद कहा, ये 4-5 दिन पहले की बात है कि बिल्कुल वो संगीन बीमार है, मैंने चेक करा लिया है, हम बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे और वो जाएं। वो अभी भी कह रहे हैं बीमार है, वो ये जो आप बीमार नहीं है। हर लम्हे एक नई डेवलपमेंट सामने आती गई, और अल्टीमेटली उन्होंने आके ये बात की कि नहीं जी अब तो 7 अरब रुपए आपने इंडेमनिटी बांट देना। देखिए फरिया, पहली बात यह है कि अगर कोई जाए और वापस ना आए, उसकी जायदाद है, इसहाक डार वापस नहीं आए, उनके जाने के बाद केस बना तो आपने उनकी जायदाद जब्त कर ली। नवाज शरीफ भी साहिब जायदाद आदमी है, अगर वो ना आए तो जब्त। लेकिन नवाज शरीफ जो बार बार हम कहते हैं वही आदमी है कि जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट की नायब कोर्ट से, एक मिनट सुन ले मेरी बात, कि आपने तारीख मुकर्रर कर दी है सजा सुनाने की, तो मैं आ रहा हूं, मेरी मौजूदगी में जो आपने फैसला सुनाना है सुनाए। उन्होंने सजा उनकी एब्सेंशिया में सुना दी। लॉजिकल नहीं, मैं सुनने वालों को ये पता कि मैं बात क्या कह रहा हूं। सवाल कुछ और है, मैं अभी लॉजिक पे तो आई नहीं रही, लॉजिक में आपसे अच्छा कौन दे सकता है? मेरा सवाल है, ये वक्त कौन सा लॉजिक देने का? आप कह रहे हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, हर लम्हा कीमती है, आप बड़ी अच्छी लॉजिक दे सकते हैं, सबसे अच्छी दे सकते हैं। व्हाई नाउ सर? इस वक्त जरा आप पीछे हो जाएं थोड़ा सा। ये मुझे ये बताइए, सेहत को, ये जो इमरान खान साहब टीपू सुल्तान की बात करते हैं, टीपू सुल्तान के लिए भी तो यह रास्ता था ना कि माजरत करके अंग्रेज की हुक्मरानी मान लेते, जिंदा भी रहते। उन्होंने कहा नहीं, एक लम्हा, मैं बात कर रहा हूं आपसे उसूली बात कि जी हमने जी चोरों से पैसे ले लिए, और भाई ये जो सजा, क्यों कहेंगे? एक लम्हा मेरी बात तो सुन लेना। वो कहते हैं अभी इमरान क्या कहा है, फवाद चौधरी फवाद ने क्या कहा है, दूसरे वज़रा ने क्या, एक मिनट अब मेरी बात सुन ले। अब ये जो अदालतें हैं, देखिए मुझे नायब कोर्ट ने जब उठाया, सबसे पहले ये कहा कि मेरे पास आए अपना परवेज मुशर्रफ के नुमाइंदे कि आप लिख के दे दें, आप सियासत नहीं करेंगे, आप चले जाएं। मैंने कहा मैं नहीं लिख के देता। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद जब मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया, वो मेरे पास आए और एक अखबार नवीसों का वक्त भेजा कि आप लिख के दे दें या फिर आप परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन कर लें। मैंने कहा जी मैं नहीं करता। ठीक। फिर एक और पेशकश हुई कि अच्छा जी आपको हम सेनेटर भी बनाते हैं, आपको हम काफ लीग का सेक्रेटरी इतलात भी बनाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बना देंगे, आप छोड़ दें। मैंने कहा मैं नहीं करता। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे सजा सुना दी गई, और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुझे पेश किया गया 8 महीने की हब्से बेजा के बाद, तो वहां डीजी नए प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम इसे डंप करके भूल गए और हम वी आर सॉरी। हब्से बेजा फरिया आप जब साबित हो जाए तो फिर रिहाई होती है, लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और फुल बेंच ने मुझे रिहाई नहीं दी, बल्कि नैब को मेरा फिजिकल रिमांड दिया। मैं मुशर्रफ साहब वाला टाइम अभी आज ही जो रिमार्क्स दिए हैं पिशावर हाई कोर्ट ने नैब के बारे में, वही पढ़ लें और वही देख लें। ओके, मैं ये नहीं, अभी फिर एक और बात है, देखिए ना ये बात आपने उठाई तो इसको, ये सजा मुकम्मल उस वक्त नाफिज होगी जब लास्ट ऑप्शन
यानी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, ओके। लेकिन हुआ क्या? अब तासुर जा रहा है कि इतने बीमार नहीं है फिर नवाज शरीफ कौन? साहब। ये तासुर जा रहा है। कोई तासुर नहीं जा जो रहा। आपने ये कामरान खान साहब ने सवाल कर दिया, आज सवाल कर दिया, ये सवाल तो अब ये perception वो पे ready बीमार हो नहीं जाए होते। फिर। आज टीपू उस सुल्तान बोर्ड जो का हुकूमत perception नहीं जा रहा। जो हुकूमती बोर्ड है उसने आज मीटिंग करके कहा है कि बहुत संगीन सूरत हाल है। ओके, तो डॉक्टर वो हैं या डॉक्टर कोई और है? राइट। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या इस वक्त परसेप्शन क्या बना हुआ है आपके ख्याल से? क्या सवाल उठ रहे हैं, पीटीआई पे उठ रहे हैं, पीएमएलएन पे उठ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियाँ साहब बीमार हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आई है कि जी मियाँ साहब बीमार है, और मैं समझता हूँ बीमारी पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी जमात को भी, चाहे वो मेरी जमात हो या इनकी जमात हो या पीटीआई हो। लेकिन अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं और जिसमें उनके अपने टीम है जिसमें सरकारी उन्होंने वो की और लोग ये कह रहे हैं कि उनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो पहले सबसे अफसोसनाक बात यह था कि पीटीआई के कुछ वज़रा ने या उनके नुमाइंदों ने बहुत पहले मजाक उड़ाया, फिर अब वो कह रहे हैं कि जी उनको बाहर जाना चाहिए। लेकिन आप बोलें कि जी ये बॉन्ड जमा करा के जाएँ, देखिए सियासी लोग क्यों जाएंगे मुल्क से बाहर? और इफ इट वाज जरदारी साहब और जरदारी साहब को जाना होता, तब उनकी भी नासाज है, तो क्या आप लोग का भी यही मौक़िफ़ होता जो पीएमएलएन के? बिल्कुल ये मौका। तो पहली बात तो है कि हमने काफ़ी आगे जरदारी साहब ने तो अपनी एप्लीकेशन ही वापस ले ली हेल्थ ग्राउंड पे, जो उन्होंने वो दी थी बेल की एप्लीकेशन, उन्होंने बहुत पहले वापस ले ली कि मैं इस ग्राउंड पे अपनी बेल नहीं कराऊंगा। और अगर जरदारी साहब के पास ये पोजीशन थी, बिल्कुल यही चीज़ होती। देखिए आप किस चीज़ पे, आप क्या गारंटी है कि मतलब है क्या कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स छोड़ के ताहयात चले जाएंगे मुल्क से बाहर? तो ये चीज़ मैं नहीं समझता कि ये चीज़ कोई वो है कि अगर आप एक कह रहे एक जगह पे आप हमदर्दी भी शो करें। 7 अरब जो कि बहुत बड़ी अमाउंट शायद नहीं है इन दिस होल सिनेरियो। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है, शायद मैं गलत हूँ, 17 तारीख से पहले ये जो है हर सूरत में नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजेंगे। 17 तारीख से पहले? 17 को क्या होना है? उर्दगान साहब आ रहे हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फैसल करीम कुंडी साहब ने दी, और फैसल जावेद साहब यहाँ पर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप क्विकली इसमें मैं इतना जरूर बता सकते हैं, इस बात पे कमेंट कर दें, देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि तैयब उर्दगान साहब के आने और नवाज शरीफ साहब के जाने में क्या ये पता आपस नहीं, में कोई राज और मूज है? ये तो कुंडी साहब हैं, उन्होंने अपना एक वो दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम तो पहले चाहते हैं, उससे भी 17 क्या बात है, हम तो फौरन हमने ये देखें, एक जो रुकावट थी वो हम दूर करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं, इनके लोग सियासत कर रहे हैं पीएमएलएन के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो फिक्र है नवाज शरीफ साहब की, और यही वजह है कि किसी भी मुजरिम का आज तक नाम ईसीएल से नहीं हटाया गया, और हम एक रास्ता बना रहे हैं, एक रास्ता तो बना रहे हैं कि जल्दी वो जाए मुल्क से बाहर। तो बहरहाल ब्रेक के बाद आप वापस आएंगी तो मैं उस पर डिटेल्स अभी सदीक फारूक साहब ने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि उनका नाम ईसीएल पे है ही नहीं, फिर कैसे नाम ईसीएल पे आ गया? इजाज शाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा। देखें उनका नाम He did not know. वो तो इजाज शाह साहब ने बाद में बता दिया था ना, उनका नाम तो ईसीएल पे, और वो ईसीएल से हटाना है नाम उनका, और उसके लिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं जो पूरे करने हैं। और मेरा ख्याल है बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, टीवी टॉक शोज करें, बयान दें, मियाँ साहब के इलाज का बंदोबस्त करें, और इलाज के लिए उनको बाहर जा रहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यह किया जा रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फिक्र है, और 14 के 14 डॉक्टर्स ने ये बताया है कि मियाँ साहब की सेहत ठीक नहीं है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि पीएमएलएन के लोग सियासत कर रहे हैं मियाँ साहब की सेहत के ऊपर। इसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ये इन्होंने प्रोसीजर एस्पेक्ट मीट करना है और चले जाएं। मुझे बताएं, लेकिन अब जब वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करें फैसले को, अगर लाहौर हाई कोर्ट कहता है जाने दें, गैर मशरूत, जो अदालत का फैसला होगा मनोहन तस्लीम करेंगे, मनोहन तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 7 अरब का बॉन्ड पब्लिक के लिए है, इन्होंने देना है, चले जाना है, इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला सेहत दे, सेहतयाब हो, वापस आए, बॉन्ड वापस ले लें। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो वो नहीं मान रहे। अब आपके पास कंफर्म रिपोर्ट्स है कि नवाज शरीफ साहब इज नॉट वेल? नो, ही इज नॉट वेल। उनका बाहर जाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, बाहर जाना भी जरूरी है। किस बेसिस पर? उनके कुछ हैं टेस्ट हैं जो कि वहीं हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड जब सैंपल्स चले जाते हैं, आते हैं, ऐसा कौन नहीं कुछ है ऐसा कि उनको बाहर जाना है इलाज के लिए, ऐसा है। और कौन सी डेस्टिनेशन जाना है जी? डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ जाना जरूरी है? लंदन जा सकते हैं, बाकी अमेरिका भी जा सकते हैं। सो यहाँ तक गवर्नमेंट बिल्कुल एग्रीड है पीएमएलएन के साथ? 100% नहीं, पीएमएलएन के साथ नहीं, मेडिकल बोर्ड डॉक्टर्स के साथ। पीएमएलएन का तो कुछ और नैरेटिव है। फरूक नसीम साहब जब कह रहे हैं कि गैर मशरूत तौर पे जाने दिया गया माजी में लोगों को, ऐसी मिसाल मौजूद है, तो फिर गवर्नमेंट की ये बात बेस्ड ऑन अ फ्यू, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ एंड कुछ मिनिस्टर्स की ये सजेशन आई,
تو یہ لگ نہیں رہا کہ ایک کچھ منسٹرز کی ایک ضد ہے جس کے پیچھے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لینا ہے انڈیمنٹی؟ اس میں ایک ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے ان کے ایک سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو باہر گئے اور واپس نہیں آئے، اور وہ اشتہاری بھی ڈکلیئر ہوئے ہیں، ان کے بیٹے، دونوں بیٹے، ان کے سمدی شہباز شریف صاحب کے بیٹے، تو اس خاندان کے کچھ ایسے لوگ ہیں تو شکوک و شبہات بڑھتے ہیں پھر کہ اگر یہ واپس نہیں آتے. اور 1981 کا خاندان کے یہی نواز شریف صاحب آئے بھی ہیں واپس 1981. نہیں دیکھیں نا، ابھی پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم بانڈ نہیں کرتے ان سے، کیونکہ وہ عدالت کے، اب آپ دیکھ رہے اس کی ڈیٹیلز بھی، جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا چودھری شوگر ملز کیس میں تو عدالت نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ملک میں یا ملک سے باہر علاج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عدالت نے مینشن کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں عدالت نے یہ نہیں اسپیسیفکلی مینشن کیا. تو اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ مجرم کا نام ECL پر ہے اور ECL سے نام ہٹے گا تو باہر جا سکتے ہیں نا، اس کے لیے پھر حکومت نے ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ ایک راستہ پیدا کیا ہے. یہ میکسیمم ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ECL سے آج تک کسی مجرم کا نام نہیں نکلا. اچھا ایک اور ہے 1981 کا جو ECL آرڈیننس ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کسی سیکشن 2 جو اس کا کسی بھی شخص کا نام ECL میں ڈال سکتی ہے، نکال سکتی ہے، ان شرائط کے اوپر جو سیٹسفیکٹری ہو ٹو دا گورنمنٹ. یہ قانون میں موجود ہے. اور رولز میں اگر آپ آگے بھی دیکھیں، خاص طور پہ ایسے مجرم جن پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا اس میں مینشن کیا ہوا ہے. تو اس کیس میں دیکھیں یہی ایک ہم بڑی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، اور آسانی ان کی باہر جانے کے لیے گورنمنٹ تمام تر رکاوٹ جو ہے وہ ہٹا رہی ہے. لیکن PMLN کے لوگ پتہ نہیں کیوں ان کی صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. Right, we have to go on a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب کی ذکر ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی دشمن مسلم لیگ نون ہی ہے. لیٹس واچ واٹ ہی سیڈ. نواز شریف صاحب کو کی جان کو اس وقت کسی سے خطرہ ہے تو وہ اس وقت خود مسلم لیگ نون ہے. یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں اور ہسپتال میں زیادہ محفوظ تھے. جس طریقے سے ان کی ٹیک کیئر کی جا رہی تھی، جس طریقے سے ان کی صحت کا خیال کیا جا رہا تھا، وہ سروسز ہاسپٹل میں جب جیل کی کسٹڈی میں تھے وہ زیادہ محفوظ تھے. اب جب سے وہ جاتی عمرہ گئے ہیں، اصل میں ہمیں ان کی صحت کے بارے میں زیادہ فکر لاحق ہو گئی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ اگر کسی نے عملی مثال دیکھنی ہے تو اس وقت مسلم لیگ نون کی پالیٹکس دیکھیں. وہاں پہ شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف اور احسن اقبال کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جس طرح سے بادشاہ بیمار ہوتے تھے تو ان کے خلاف سارے سازشی شروع ہو جاتے تھے. صدیق فاروق صاحب، یہ بات ابھی فیصل جاوید صاحب نے بھی کی کہ پرائم منسٹر کو تو فکر ہے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر PTI کو ہو گئی ہے، PMLN کو نہیں ہے. سو فکر نواز شریف دو باتیں. ایک تو میں پہلے سزا کی بات کروں گا. میرے ساتھ 99 میں ایک اورنگزیب تورو صاحب ہیں یہاں، وہ ایک گریڈ 20 کے افسر تھے. نیب نے اٹھا لیا، 5 سال انہوں نے جیل کاٹ لی. ایک سوال پوچھتا ہوں، 90 سے کب نکلے گی؟ مجھے یہ بتائیے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو بار بار کیوں سوال کرتی ہیں؟ میرا جواب تو سنیں نا. میں جواب دوں گا آپ کو بھی جواب دوں گا. یہ نیب کا کردار ہے. نیب ادارہ تسلسل سے چل رہا ہے، کہیں وہ رکا نہیں ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں 5 سال اس نے سزا کاٹی ہے. یہ 2 مہینے پہلے اس کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا. 5 سال قید جو کاٹ لی وہ گئی، کون پوری کرے گا وہ؟ یہ اسنیپ ابھی میں نے بتایا. آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان یکے بعد دیگرے کئی، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، ججز صاحبان نے نیب کے حوالے سے جتنے سوالات اٹھائے، پھر جتنے فیصلے دیے ہیں وہ تو ذرا دیکھیے گا. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اور پھر نیب، میں نے پہلے کہا تھا کہ نیب کی کسی عدالت کی دی ہوئی سزا، وہ تو خود اعجاز اپنا شاہ کی یہ بیان کہ اگر فلاں 2-4 کی بات نہ مانتے تو آج بھی نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے، اور پھر اور بہت سی باتیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ نیب کی عدالتوں سے دی ہوئی سزا کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ سے ریویو پیٹیشن بھی ریجیکٹ نہ ہو جائے. ٹھیک. دوسری بات میں نے عرض کیا تھا کہ باہر جانے کی بات آپ کے سامنے پھر میں نے دوہرا دی تھی کہ اسحاق ڈار گئے نہیں آئے، 50 کروڑ روپے ضبط. کل ان کا 4 کنال کا مکان، وہ بھی میرے خیال میں کچھ ضبط ہو گیا. اگر نواز شریف جا کے باہر نہیں آتے، جو پہلے گئے اور آ گئے
यानी उनके एब्सेंशिया में सजा सुनाई और वो आ गए। या आप पूछ के कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से ये दे रहे हैं गारंटी कि उनकी जायदाद जब्त कर ली जाए बाद में? मैं कानून की बात कानून की बात करें, ठीक है, ये मैं कानून की बात तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो नहीं आएंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, अगर ये समझे आप। ये फैसल करीम कोटी साहब एक माजी से अगर ले 90s का मैं जिक्र किया, 90s को भी ले आए, क्या लुकिंग एट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नवाज शरीफ साहब ये अदालत के आगे आएगी भी बात, क्या है ये एक खतरा कि वो नहीं वापस आएंगे? कहाँ जाएंगे अगर नहीं आएंगे तो? देखिए ये तो मैं दिल के बे तो कोई नहीं जा सकता ना। मैं आपने फवाद चौधरी की बात की, मैं फवाद चौधरी की तरह नजूमी नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन है और हमारा ये ख्याल है कि एक पॉलिटिशियन इतनी बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो शायद वो इस तरीके से पॉलिटिक्स छोड़ के और नहीं चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें देखें हमें कुछ चीज़ सीखने भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखिए हमने कहा है कि एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हमसे शुरू करें बस पार्टी शुरू, लेकिन देखिए हमारा भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का भी होना चाहिए, फौजियों का भी होना चाहिए और जुडिशरी का भी होना चाहिए। हम जब बाकी इदारों पे जाते हैं कहते हैं जी ये तो हमारे जो हैं अपने इदारे के अंदर अपनी हमारे एहतसाब का सिस्टम है और हो सकता है आप करें, तो ऐसे तो पार्लियामेंटेरियंस के लिए या सियासतदानों के लिए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसका क्यों नहीं होता? लेकिन इसमें सदीकुल फारूक साहब वगैरह की पार्टी का भी बड़ा कसूर है। जब हम 2008 में थे और हम जब ये चीज़ खत्म कर रहे थे तो इन्होंने नहीं खत्म करनी थी, इनके पार्टी के लोग कहते हैं नहीं नहीं अगली बारी तो हमारी आनी और हमने ये काम करना है और ये एहतसाब हमने करना है लोगों को और ये करना है। लेकिन हमारे दौर में हमने किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की और न किसी को हमने इस तरीके से नैब के हवाले की, और नैब तकरीबन हमारे दौर में वो थी। लेकिन आज ये अफसोस की बात यह देखें आप एहतसाब करें, आप सब कुछ करें, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कल की बात है, हालांकि मेरे अपोनेंट है, मेरे अपोजिशन की पार्टी है, मौलाना साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूँ, अकरम दुरानी साहब की 90+ उसकी वालदा की उम्र है, उसको बुलाया नैब ने, क्या पाएं? अगर आपने अकरम दुरानी के साथ आपकी सियासत है, जिद है, लेकिन इस किस्म की रिवायत रखना, इस किस्म की रिवायत को फरोग देना मैं नहीं समझता। रिलेटेड टू इंडेमनिटी बॉन्ड, इस सब का ताल्लुक कैसे ऐसे है? मैं वो नहीं कह रहा, मैं हमारी डिबेट चल रही थी नहीं कि बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। एक लम्हा जो मैं आपकी मदद कर, जो बुनियाद बनी है ना सजा देने की, उस पे हम बात कर रहे हैं। मैं सदाई ऐसे है, खड़े हुए केसेस बीमारी भी तो है, बीमारी है कि नहीं? तो केसेस भी गलत है। उनको अपने प्राइवेट डॉक्टर तक रसाई नहीं है, वो अभी तक कन्विक्टेड नहीं है। इसी तरह पुरहित शाह को देखें, वो कन्विक्टेड नहीं है। अगर स्पीकर सिंध असेंबली को कन्विक्टेड नहीं है तो अब कन्विक्टेड नहीं है, तो इस तरह तो बहुत सी देखें। मैं आज कहता हूं आपकी तवज्जो से, मैंने कई दफा चेयरमैन नैब से कहा है कि हमने बीआरटी पे केपीके पीपल्स पार्टी ने एक एप्लीकेशन जमा कराई है, उस पे आज तक हमें चेयरमैन नैब ने जवाब नहीं दिया। हमें बता दें कि आपकी एप्लीकेशन गलत है, आपकी एप्लीकेशन मैं नहीं मानता हूं या मैं मजबूर हूं या कुछ, तो हमें कह देना कि आपकी एप्लीकेशन मैंने नल एंड वॉइड कर दी है। राइट। हमने कई महीनों से उसके इंतजार में है कि उसकी अभी तक उन्हें जवाब काफी सारे सवालात ये जमा हो गए हैं। आई हैव टू गो क्विक ब्रेक, 2 मिनट की ब्रेक है, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब, अब लग ये रहा है कि आपका अकाउंटेबिलिटी का नारा, ब्रेक आ जाती है आपके ऊपर, अकाउंटेबिलिटी का नारा जो है आप लोगों ने लगाया है वो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो जान कि इतने खतरनाक सूरत हाल है, इतनी तबीयत खराब है, लेकिन आपको साबित करना है कि आप गलत अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। अब ये सब ये नजर ये आ रहा है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फैसल जावेद साहब, वक्फे पे जाने से पहले आपसे यही सवाल किया था कि आप लोगों ने क्योंकि वादा किया अकाउंटेबिलिटी का, आप लोगों के वोटर ने आपसे सवाल करना है, इसीलिए जो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, इसलिए आप लोग ये इंडेमनिटी बॉन्ड भी करे। कल को ज़रदारी साहब ने भी कहना है कि मेरी तबीयत खराब है, कल को और लोगों ने भी कहना है। किधर गई फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी? देखिए ये इसलिए नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल गलत है। ये 14 के 14 डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है। ईसीएल से नाम निकल ही नहीं सकता किसी मुजरिम का, नहीं निकल सकता ना। 14 डॉक्टर किसी और प्रिजनर को देखने जाएंगे वैसे तो नहीं मेरी बात सुने ना, पहले सवाल का तो जवाब दे दूं ना। ईसीएल से नाम निकल नहीं सकता मुजरिम का, तो एक रास्ता बना रहे हैं, आसानी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फिक्र है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत की। इनको नहीं होगी, ये तो सियासत ही कर रहे हैं उनकी सेहत पे, प्राइम मिनिस्टर को फिक्र है। इसलिए ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट सामने रखें, इसको मीट करें और अब ठीक है अदालत में चलेगी, अदालत का जो भी फैसला होगा हम उसे मनोवन तस्लीम करेंगे। कई केसेस कहीं रुक नहीं रहे हैं। जब डील होती है ना, डील, ये तो सबको पता है, डील होती है अल-अज़ीज़िया केस भी बंद हो जाता है, डील होती है तो सरे महल भी छोड़ दिया जाता है, डील होती है तो वो
स्विस बैंकों की दौलत भी छोड़ दी जाती है, डील होती है तो सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ और साद अल हरेरी आके दिखा देते हैं कि ये जी डील थी साइन। डीलें वो होती हैं, इसमें तो कोई केस बंद नहीं हो रहा, केसेस उसी तरह से चलते रहेंगे। सिर्फ ये है कि बीमार हैं, इलाज के लिए इलाज करके वापस। और इसीलिए हम कहते हैं इनको कि आप ये जो बॉन्ड वाली चीज थी, ये देखें पूरा मुल्क PMLN की गवर्नमेंट ने गिरवी रखा, पूरा मुल्क को गिरवी रखा, तो एक अपनी ये प्रॉपर्टीज मियां साहब की सेहत के लिए नहीं रख सकते। But you are again alone अपनी इस डिमांड में, ना ऑपोजिशन इसको मान रही है। खुद चौधरी परवेज इलाही भी एक बात कह रहे हैं, चौधरी शुजात ने भी ये बात की कि एक दफा आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात करें, एक दफा इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रहे हैं, ये इकट्ठे नहीं चलते। तो आपके हामी भी आपको ये समझा रहे हैं। जी, उसकी वजह ये है, देखिए जितने भी केसेस है ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, वो मरकजी किरदार हैं तमाम केसेस के। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? हो ये सकता है क्योंकि इनके खानदान के एक से ज्यादा लोग बाहर गए और वापस नहीं आए और इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हैं, तो इस सूरत हाल में शुकूक व शुबहात जरूर पैदा होते हैं कि अगर ये वापस नहीं आते प्रॉब्लम क्या होगा। जो केसेस चल रहे हैं ना नैब के, इधर भी इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी जो केस, उसके मरकजी किरदार हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर वो वापस नहीं आते तो केसेस के रुकने का खदशा है, क्योंकि मरकजी किरदार सारे लिंक्ड हैं उनको। जी, वो तो नहीं, कुछ तो केसेस चल रहे हैं ना, आपने आगे मजीद सजा देनी है उनको। नहीं, उनके तो रेफरेंसेस है, 3 रेफरेंस इधर इस्लामाबाद में, एक उधर है, तो बाकी तो चल रहे हैं ना। ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के जो मुजरिम हो उनको आप बगैर किसी श्योरिटी के उसके नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगा। मैंने आपके सामने 1981 का जो ECL ऑर्डिनेंस है वो रख दी है कि कानूनी, ये कहते नहीं कानून में कहां है, कानून में कहां, आप मुझे बताएं कानून में ये कहां है कि किसी मुजरिम का नाम ECL से निकाले। उसमें यह है कि गवर्नमेंट ये स्वाबदीद है, फेडरल गवर्नमेंट की, हुकूमत की ये स्वाबदीद है कि क्या सेटिस्फैक्ट्री होगा उसके लिए कि नाम निकाला जाए। ये स्वाबदीद, ये ECL ऑर्डिनेंस जो 1981 के उसमें है, तो सेक्शन 2 में। तो बात ये थी, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इसके बाद तो खैर मुझे बात करने का मौका ना मिले, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि खुदा के लिए नून लीग के साथियों, नवाज शरीफ साहब की सेहत पे सियासत मत करें और इलाज पे। अब कब से वो हुए हैं, अदालत से उनको रिलीफ मिला हुआ है, कुछ दिन तो हो गए हैं, और वो हॉस्पिटल में इलाज उनका होना चाहिए था ना, वो घर पे देखें, इलाज पे फोकस करें, सियासत मत करें, और आप जाएं मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाएं। ओके, ठीक है। सिद्दीक साहब, जो सवाल मैं कही थी कि जो वक्त गुजर रहा है, नुकसान PMLN को इसलिए हो रहा है, कामरान खान साहब की ट्वीट आपके सामने रख रही हूँ, शिद्दत से सवाल उठे हैं कि क्या वाकई नवाज शरीफ इंतहाई शदीद अलील है, वो लाइफ थ्रेटनिंग कैफियत से दोचार है? अगर ऐसा है तो क्या खानदान के लिए कागजी बॉन्ड जान से ज्यादा कीमती है? PMLN पूरा दिन गुजार कर अदालती औकात खत्म होने के बाद 3 बजे हुकूमती पेशकश पर मीटिंग शुरू करेगी, माजरा तो पूछा जाएगा। पहली बात यह है कि जो इन्होंने अच्छी बात की कि जी कोई डील नहीं है, तो फिर इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि वो जो अपने प्रोग्राम में $14 अरब की डील की बात करते हैं, उनकी पोजीशन, वो भी अपना बड़ा कहते हैं जी हमें मुझे अदालत ले जाओ और मैं अदालत ले जाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि घर में शरीफ मेडिकल सिटी सामने है, दरवाजे उनके घर के दरवाजे के सामने, और जो जरूरत होती है ICU में वो प्रोवाइडेड है। डॉक्टर्स वही बोर्ड वाले देख भी रहे हैं, जिन्होंने कल भी मीटिंग की और उन्होंने बात की है। अब मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि जब मामला सियासत पे आ जाता है, जब मामला पूरे वकार और पूरी इज्जत और एहतराम का आ जाता है, तो फिर उस वक्त अगर टीपू सुल्तान बनना पड़ता है, और कोई बने ना बने, तो फिर बनना चाहिए। और एक बात मैं और अर्ज करूंगा, इन्हीं अदालतों के हवाले से जिनकी सजा को आप बड़ी बात करते हैं, अपना केस मैंने आपके सामने रखा है। बनने का आप फेवर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, बीमार हैं, टीपू सुल्तान बन जाए, आप जाए, आप जो मर्जी। मैं नहीं फेवर कर रहा, ये नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला। सर, आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो बीमार है। जो बात मैं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं, घर वाले भी मौजूद हैं। अभी मैंने आपको सवाल सारे कामरान खान साहब के, ये कामरान खान साहब के सवाल हों, आपके सवाल हों, किसी के सवाल हों, अगर जुल्फी बुखारी जा सकता है ना, तो नवाज शरीफ साहब जुल्फी बुखारी साहब और नवाज शरीफ साहब 2 घंटे में, इसलिए कि उस वक्त जो है वो शायद जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके मामलात कुछ और थे। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि ये सियासत हुकूमत खेल रही है, ये दुश्मनी है, और वो कोशिश करते हैं कि हम उस अदालत के जरिए, जिसका एक जज का वीडियो स्कैंडल सामने आ गया है, उसके बाद और इनके अपने वजीर दाखिला के बयान के बाद क्या वो कतरा जाती है इन केसेस की। लिहाजा हम इन अदालतों के फैसलों को, ये तो ठीक है कि वो इंप्लीमेंट होंगे और हम अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन उनकी क्या हकीकत है,
अपना जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्हीं अदालतों ने जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन्हीं अदालतों ने उनको सजा सुनाई, फांसी लगा दी। एक नहीं, बहुत से लोगों को आज किसी अदालत में बतौर प्रेसिडेंट वो फैसले नहीं पेश होते, ठीक याद रखें। राइट, फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो पूरा सवाल उठ गया अकाउंटेबिलिटी पे, ना अदालत के फैसले माने जाएंगे ना नैब के फैसले माने जाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए, इससे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने आपको जवाब दिया, उस पर BRT का भी जवाब दिया, दुरानी साहब की वालदा का भी तो नहीं माने, लेकिन इसका रिजल्ट ही निकलेगा। देखिए आप नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन के लोग जिनके ऊपर सिर्फ इल्जाम है, अभी तक रेफरेंस भी दायर नहीं है और कन्विक्ट भी नहीं है, तो वो जेल में है, और जो इनके साथ मिल जाते हैं तो वो जो है वो अभी तक जो है उनके ऊपर कोई आंच भी नहीं। कौन से केसेस हैं? BRT नहीं, जो कौन से केसेस हैं, ये तो इनके दौर के केसेस हैं ना। क्या चीज? ये जो सारे आपके आपस में चल रहे हैं, हमारे दौर के भी हो। आपके डार साहब गए, आपके डार साहब गए, इरफान सिद्दीकी पर किसने केस बनाया? नहीं, इन लोगों पर किसने केस बनाया? आपके डार साहब गए, अपने इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये किसके दौरों के केसेस बने हुए हैं? यार देखो, जिस दौर के मैं कह रहा हूँ कि BRT किस दौर का है, हमने तो चेयरमैन नैब को लेटर लिखा है, उसने आज तक जरूरत नहीं की हमें जवाब लिखने की कि यार ये नल एंड वॉइड है, तुम लोग। चेयरमैन नैब साहब ने कहा है कि फिलहाल तो जो साबिक हुक्मरान है उनके अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर इनकी जब बारी आएगी तो उस वक्त आप मुझे बताएं कि KPK में 6 साल की हुकूमत बताएं, एक प्रोजेक्ट तो बताएं, सब पे इनके करप्शन के इल्जाम हैं इनके ऊपर। आप मुझे बताएं कि इनके जो वजीर, आपके अपने डार साहब ने अपनी आपकी जो अभी क्या है अपनी स्पेशल जो फिरदौस जवान पे इन्हीं के डार साहब ने केस किया था, मैं तो नहीं किया था ना, वो बसों का और पता नहीं क्या क्या चीजों का, तो वो ठीक हो गई है। इसी चौधरी साहबान को इन्होंने डाकू कहा था, अब उनकी हो गई फिरदौस आशिकवान साहब जब केस की तो अब जो जब चली गई तो So basically my question was हमारे लोगों ने तो पॉलिटिकल हमारे लोगों ने वजारतें छोड़ी हैं। एक जुमला फिर ये कंक्लूड करें, जो अदालत के पलड़े या अकाउंटेबिलिटी के पलड़े बराबर होने चाहिए, वो इनके लोगों के समेत इमरान खान के उनकी कंपनियां भी सामने आ गई, नैब के सामने काला धन भी सामने आ गया, अदालतों के सामने पेश हुए। हमारे लोग तो अदालतों के सामने देखे, हमारे वजीर इमरान खान की बात करें, हमारे वजीर आजम काला धन क्या बात की 2002 एक सेकेंड कितने 2002 में काला धन सफेद किया, 2017 में सिलाई मशीन से मतलब ये तो नहीं है। बाकी एक सेकंड फारूक साहब, आप ये कह सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, 1 साल पूरा चला है पैनामा के बाद, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना वो होती है, 1 साल पूरा केस चला है, 40 साल का रिकॉर्ड, एक एक चीज ये ऑडिट किया इमरान खान का, और उन्हें 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी दिया है, 60 दस्तावेजात दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है, सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं। वो जो डैम बनाने वाला, ये टीवी शो है या कॉमेडी प्रोग्राम है? वो डैम बनाने वाला कॉमेडी प्रोग्राम है कि टीवी शो है? उस पैसे पे हिसाब दिया जो बाहर कमाई करके पाकिस्तान लेकर के आए, वो अच्छा, आज मुझे पहली दफा पहली दफा पता चला है कि आपका आखिरी जंग जो होता है वो कॉमेडी प्रोग्राम होता है। एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया भाई, फ्लैट हमारे हैं तो कैसे हैं? कभी कहा फ्लैट बेच के लिया। मेरा सिर्फ सवाल इसमें हमेशा एक ही रहता है, पूरे पैनामा में रहे, फर्ज करें वो बिल्कुल चोर है इमरान खान, उसका मतलब ये तो नहीं है बाकी जवाब देनी है। भाई वो तो रिपोर्ट हो, भाई रियासत में मदीना बना रहे हैं तो पहले अपने आप को तो पेश करें, हम कह रहे हैं आप नहीं कह रहे कि इमरान खान, आप कह रहे हैं हमने अदालत को नहीं माना, हमने नैब को नहीं माना। एक और फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो ये अदालतों पे अटैक करते हैं। जस्टिस सज्जाद की वो फुटेज चलाइएगा इनके, मुझे बताओ वो किधर गया? अदालत पे इन्होंने फिजिकल अटैक किया है, इनके हक में फैसला है तो ठीक है, खिलाफ आए तो ये अदालतों को बुरा भला कहते हैं। मैं नहीं, वो किधर गया? इन्होंने स्विस बैंक की बात की, वो मुराद सईद किधर गया आजकल मुझे नजर नहीं आता, जो जाना था जिन्होंने 200 अरब रुपए लाना था और मुंह पे मारना था, तो अभी तक स्विट्जरलैंड में वापस आ गया, रुपया नहीं डॉलर लेके आया, तो कहा मैं आऊंगा और अगले दिन मुंह पे मारूंगा। तो वो किधर गए? क्या उसके लिए मोटरवे बना रहे हैं स्विट्जरलैंड के लिए? क्या कोई पैसा नहीं देगा, जो पैसा अगर मैं नवाज शरीफ की जगह होता और ये मुझ पे इल्जाम होता तो मैं पाकिस्तान में मरने को तरजीह देता बनिस्बत इस बॉन्ड की जगह। और नवाज शरीफ साहब की जगह आप लोग हैं, आप लोग कह दिया है कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। फैसल जावेद साहब वो कह रहे हैं टीपू सुल्तान बनना है नवाज शरीफ साहब ने, अब क्या करेंगे? वैसे तो मैं कहता हूं खुदा के लिए सियासत ना करे उस पे, उनको बॉन्ड देखिए, बॉन्ड देंगे ना, 7 अरब का बॉन्ड देना है, वापस आके ले लेना है, बात खत्म है। अच्छा देख ले, फिर इसमें तो कोई नहीं है ना, ये रिकॉर्ड कर लिया, वो कह रहे 17 से पहले जाना है। देखिए अल्लाह करे निकालने हर सूरत में 17 से पहले, अल्लाह करे रास्ता बने, हमें तो फिक्र है, हम तो इसीलिए असल बात यह है जो मैं पहले भी देख, अदालत में मामला है,
عدالت کو فیصلہ کرنا ہے تو جو کر رہے ہیں کہ So فیصلہ basically government is also saying کہ جو عدالت کہے گی وہ مانیں گے. government آپ یہ is- کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کہے گی وہ مانیں گے. گورنمنٹ کہے گی نا.